Good morning, all. Am I audible, Dr. Kothari? Dr. Kothari, please unmute yourself. Yes, you're audible. Good morning, all. Hope you all are well. So today's session is on sport-specific injury and its prevention in athletics. It will be presented by Dr. Ronak Kothari. So I would request Dr. Ronak Kothari to start the presentation. Dr. Ronak, please start the presentation. Yeah. Thank you, Gopalji. Yeah. Yeah. I guess my voice is audible. Yes, your voice is audible. Yeah. Good morning, everyone. Yes, 1 second, Dr. Kothari. Yeah. So I would request all the participants to please mute yourself. If you have any question, then unmute yourself. Okay. Thank you. Dr. Kothari, please proceed. Yeah. Thank you. So good morning, everyone. Good morning and very welcome to all the athletes and coaches and even some of the staff members as well. So today we are going to talk about some kind of injury prevention or reduction in athletics, basically. So before we start, I would like to thank Sports Authority of India and the committee of CAIMS to provide the platform to to be able to share something which is helpful for our coaches and athletes. We would directly go to the presentation. So I'll try to be bilingual, but then if anything else, like anything which is like okay, understandable or something, you can directly ping me at that time, or you can even write in the chat box as well. So I'll share my screen. I hope the screen is visible. Yeah. Okay. So starting from the prevention, the word itself, injury prevention in athletics. Now, as a lot of people has already cleared that absolute injury prevention is not possible. So that's why it is some rigid word to say prevention is zero. So we don't say prevention. Basically, we say injury reduction more. Like routinely, what we have used such words are because this is into the trend. So people understand injury prevention more than reduction. So I always explain that injury reduction is what we are working on, and absolute prevention is not something which we might attain, though we are not certain. So let's go. So before jumping into specific injuries, I would like to talk about some of the things. Like we have so many injuries in this presentation, but I know being the part of athletics sports for since I guess 4 to 5 years, I know that there are some injuries which are so common and so repeatedly happening that we need more focus on that. But as this platform allow us to share everything, so we will be sharing a lot more on other injuries as well, just to have an idea of the same. So starting from hip flexor strain, so this is a common injury in long distance runners, or say a sprinters sometimes if they have some lack of hip mobility or something. What is it specifically? Yeah, specifically what is it is the group of muscles that help move the leg within the upper direction. Now upper direction is something which is hip flexion. Okay, so when your hip flexion muscles are having a strain like muscles would when the muscles would be injured, it would be called strain, and when the ligaments or connective tissues would be injured, it would be called sprain. So when hip flexors, which is iliacus, psoas major, or even the long hip flexors like sartorius, if any one of them would have, most probably iliacus and psoas majors, if they would have a strain, then these muscles are, that injury is called a hip flexor strain. Now that is again overlapping with groin injuries as well. So we would also see some of the groin injuries combined with that, but right now we are focusing on hip flexor injury. So when these muscles are stretched too far, or I would say loaded too far, which they are not prepared for, almost every injury is accountable for the same thing, that it is loaded beyond its trainability, or it's not trained enough and loaded.
it's not like they have some kind of limitations of training, but we haven't trained enough, but we are using it. It's just like having a glass of water half and then asking a full glass of water to demanding for a full glass of water. So at that time we need to actually make the glass full fast. So that's how the trainability works. This injury develops when people are too stiff, like once they forgot to warm up or something. Like that is a lot of times that happens, that in a hurry an athlete would just directly do some of the things which he thinks, or which we think which is important, and other things which are not important. Some of the joints he would say, specifically hip joints, he would ignore to warm up or something specifically. Then at that time, if at all the training stimulus goes beyond, it is not like every time if you don't warm up properly you would end up in injuries. Okay? I see a lot of people talking like usually मैं नहीं करता हूँ इतना अच्छे से वार्म अप, ठीक है, मैं इतना ज्यादा नहीं करता हूँ, फिर भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं होता, बट अभी आज ही हुआ. लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एथलीट को पूछता हूँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो देन ही इज लाइक, सर रूटीनली तो मुझे कुछ नहीं होता है, मैं ऐसे ही वार्म अप करता हूँ, बट आज ही हुआ. तो ये हो सकता है कि उसी दिन आपका ट्रेनिंग स्टिमुलस रेगुलर ट्रेनिंग से या आपके ट्रेनेबिलिटी जो आपके ट्रेनिंग एडेप्टेशंस है उससे ऊपर गया हो विदाउट वार्म अप. सो वार्म अप हेल्प्स डेफिनेटली. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू टेक केयर. ओके, वो हमें देखना पड़ेगा. तो हिप फ्लेक्सर स्ट्रेन क्या है? जो आपके मसल्स जो हिप फ्लेक्शन करते हैं उसका स्ट्रेन, उसमें माइनर टियर हो जाना, और वो उसको हिप फ्लेक्सर स्ट्रेन बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपका हिप मोबिलिटी, आपका जो हिप जॉइंट है वो पूरी रेंज में कितना मूव कर रहा है. साथ में आपका जो लंबो पेल्विक स्टेबिलिटी, जो हिप के ऊपर का बैक है आपका, वो कितना मूव कर रहा है. अच्छे से मूव भी करना चाहिए, अच्छे से कंट्रोल भी होना चाहिए, अच्छे से स्ट्रेंथ भी होना चाहिए. ठीक है. तो जब ये चीजें नहीं होगी तब ये प्रॉब्लम होगी. ठीक है. सो दैट्स वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर वे. ट्रेनेबिलिटी में आपको अगर हिप फ्लेक्सर स्ट्रेन कम करना है तो आपको आपका लो बैक भी अच्छा रखना पड़ेगा, आपका एंकल भी अच्छा रखना पड़ेगा, आपका नी भी अच्छा रखना पड़ेगा. सो दैट वे इट गोज. सो अगर हम रिडक्शन की बात करें तो सिंपल है, आपको अच्छे से हिप जॉइंट मोबिलिटी वर्क करती है. काफी बार हम लोग इंजरी प्रिवेंशन या इंजरी रिडक्शन में क्या करते हैं, धीरे धीरे वार्म अप में कुछ ड्रिल्स ऐसी ऐड करते हैं जहां पे मोबिलिटी हो स्पेसिफिक. वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा वार्म अप भी अच्छा नहीं. तो अगर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो वार्म अप के अंदर तो भी प्रॉब्लम होती है. तो दैट्स व्हाई लेसर टाइम एंड एथलीट स्पेसिफिक थिंग्स, कि किसी एथलीट को मोबिलिटी में इशू है तो उसके ऊपर वो रोज वर्क करेगा. अगर नहीं है तो वीकली ट्वाइस थ्राइस आप वर्क कर सकते हो, जिसमें स्पेसिफिक जो हम उसको अटेंशन देके वर्क करवा सकते हैं. ठीक है. नाउ same for lumbar stability as well. Like when you would be actually training lumbar stability and all, it is आपके core stability और आपके lumbar stability की जो workouts होते हैं, core strength और stability के workouts होते हैं, उसमें ये चीज हो ही जाती है. बट फिर भी कंट्रोल ये काफी बार मिसिंग होता है, ब्रीथिंग कंट्रोल मिसिंग होता है. तो उसकी वजह से भी आपका हिप जॉइंट इतनी अच्छे से मूव नहीं हो पाता जितना अच्छे से मूव होना चाहिए. ओके, सो इवन दैट हैज टू बी ट्रेन. तो बेसिकली ये इंजरी प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? हिप मोबिलिटी अच्छी मेंटेन करेंगे, आइडेंटिफाई करके किसी एथलीट में रिपीटेडली ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, आइडेंटिफाई करना चाहिए. ठीक है. फिर या तो फिर अगर लंबर स्टेबिलिटी से हो रही है तो वो चीजें इंप्रूव करेंगे. को कंट्रैक्शंस होते हैं, लंबर एसोसिएशंस होते हैं, कि जैसे एक हिप आपका, हमेशा एथलेटिक्स में क्या होता है, जब एक हिप एक्सटेंशन में है दूसरा फ्लेक्शन में मैक्सिमम टाइम. सो अपोजिट जो डिसोशिएटेड मूवमेंट होती है उसमें लंबर स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका जो लंबर स्पाइन है, जो बैक है, अपर बैक है, वो कितना स्टेबल रह रहा है, साथ में मूवमेंट की रेंज भी दे रहा है. दोनों चीज जरूरी है. ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी करें. काफी बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कोर स्टेबिलिटी हम लोग कर रहे हैं, कोर स्ट्रेंथ कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा स्टिफनेस डेवलप होगी. अगर रेंज कम हो जाएगी तो भी इशू है. नाउ डिपेंड करता है ये स्प्रिंटर्स पे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स है क्या, तो उनकी डिमांड्स अलग अलग होती है. कहाँ पे किसको ज्यादा स्टिफनेस चाहिए उसके हिसाब से हम उसको इंजरी रिडक्शन में डाल सकते हैं. सबके लिए ये चीज सेम नहीं है. मैं अभी भी ये चीज रिपीट करूंगा, एंड आई emphasize on that you be sport specific. Okay, so then some of the injuries which are not common, we are just running through it so that we can actually focus more on the other injuries which are there and which are common. Okay, then the torn ACL. ACL इंजरीज इतनी कॉमन नहीं है एथलेटिक्स में, बट जो आप हमारे फील्ड इवेंट्स हैं, सम ऑफ द ट्रैक इवेंट्स जैसे कि लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, इसमें हो सकती है, इवन हाई जंप,
में काफी बार हाई जंप से ज्यादा द थिंग्स आर लाइक पोल वॉल्ट, कि जहाँ पे लैंडिंग आपको कहीं से भी गलत हो गई या वो हो सकता है। बेसिकली इट इज अबाउट द लैंडिंग, कि जहाँ पे लैंडिंग गलत हो रही है या आपने इम्पैक्ट गलत लिया है। ओके, फील्ड इवेंट्स में काफी बार थ्रोइंग, क्योंकि वहां पे पाइवोटिंग होता है, तो अगर नी का जहाँ पे भी पाइवोटिंग होगा, रोटेशनल फोर्स या टॉर्क जनरेट हो रहा होगा, और वहां पे अगर आप एथलीट ने कंट्रोल खो दिया, तो भी ये टोन एसियल वहां पे हो सकता है। एंटर क्रूशिएट लिगामेंट आप सबने सुना होगा, बहुत कॉमनली रेफर किया जाता है एज एन ACL। वो लिगामेंट आपका क्या नी का आगे का मूवमेंट रोकता है। जो नी आपका जॉइंट है वो जब आगे ऐसे जा रहा होता है नीचे टिबिया, उसको वो पकड़ के रखता है, वो आगे नहीं जाने देता। जब वो नहीं होता है तो आपका नी हमेशा आगे सरकने लग जाता है। नाउ ACL इज द मेन लिगामेंट ऑफ डूइंग दैट। वो मेन लिगामेंट है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अकेला लिगामेंट है। ओके, आपके पास और भी मसल स्ट्रक्चर्स और वहां पे 11 से 12 लिगामेंट्स और होते हैं जो ये चीज कर सकते हैं। बट हाँ, ACL आपका मेन लिगामेंट होता है, इसलिए अगर वो मेजरली इंजर्ड होता है और साथ में अगर मेनिस्कस इंजरी या नी के और स्ट्रक्चर्स भी इंजर्ड है, तो आपकी नी की स्टेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। ओके, a sudden drop or change in direction could stretch these ligaments to a collapse and causing a tear. Okay, अगर सडनली चेंज ऑफ डायरेक्शन ऐसा हो रहा है कि जहां पे ऐसी चीज हो रही है कि जो कंट्रोल नहीं हुई, बिल्कुल आपका कंट्रोल नहीं हुआ, समझिए उसमें, तो देन दैट सडन स्टॉप और चेंज इन डायरेक्शन, जहां पे कंट्रोल नहीं था, जहां पे नी पाइवट हो गया या नी ने गिव अवे कर दिया, एट दैट टाइम आपके जो पैसिव कनेक्टिव टिश्यूज है, मतलब कि जो कंट्रैक्ट नहीं करते, आपके मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, जो आपके लिगामेंट्स होते हैं वो कंट्रैक्ट नहीं करते, वो आपको एक टेंशन प्रोवाइड करते हैं, वो पैसिव होता है। ठीक है, तो वैसे जब आपके अगर नी ने न्यूरोमस्कुलरली गिव अवे कर दिया, तो आपके मसल्स अभी वहां पे शट डाउन हो गए उस टाइम के लिए, उस टेक्निक में, एट दैट टाइम आपका सारा लोड उस लिगामेंट पे जाएगा। और अगर वो इंजरी ज्यादा जर्की हुई कि जो आपके लिगामेंट्स उतने फोर्स नहीं ले सकते हैं, देन यू वुड एंड अप विद एन ligament tear. ठीक है, we'll just watch a video of the same. Okay, I hope yeah, the video is clear, so you can see over here, it will be coming into some seconds. So the video is of a long jump player, so yeah, here you can see that leg slips. Okay, now this is a planted leg over here, and now when it slips, it would go into a hyperextension. It's not necessarily that it would be just ACL injury. Okay, usually the ACL injury goes into जब आपका नी इनवर्ड डायरेक्शन में पाइवोट होता है, साथ में फ्लेक्शन होता है. Okay, see, that's how it went, and definitely the knee gives away, knee तुरंत इनहिबिट हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको इंजरीज नहीं, आप जंप, वो मूवमेंट भी आप कंप्लीट नहीं करते. Okay, so that was just some visual of an ACL injury, how it happens. Okay, so for ACL injury क्या important है, हमें ये ध्यान रखना है कि इसका अगर हमें प्रिवेंशन करना है, तो आपको आपके जो एक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो मसल्स हैं, जो नी की सारी मूवमेंट, समझ लीजिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाली मूवमेंट्स है, थोड़ा सा रोटेशन होता है नी में, नी जो जिस टाइप का जॉइंट है उसमें से एकदम माइनर सा एडजंक्ट एंड कंजंक्ट रोटेशन होता है, वो भी लॉकिंग और अनलॉकिंग के टाइम पे, तो वो भी मूवमेंट आपको काफी बार, अगर वो मूवमेंट आपका कंट्रोल्ड नहीं है, वो मूवमेंट भी अगर आपके मसल्स उसके लिए भी रेडी नहीं है, देन काफी बार हो सकता है कि वो रोटेशन अब्रप्टली हो जाए, और फिर आपकी जो लिमिट होती है रोटेशन की, वहां पे आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओ, और देन इट वुड गेट टोन. काफी एक्सरसाइजेस हम लोग उसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो आप नी को स्टेबल करने के लिए, दोनों चीज, नी की स्ट्रेंथ, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ, हिप मोबिलिटी, हिप स्ट्रेंथ, ये सब तो इंपॉर्टेंट होता ही है ना, वो हम ट्रेन करने के साथ साथ नी के रोटेशनल स्ट्रेंथ, रोटेशनल कंट्रोल, रोटेशनल स्टेबिलिटी, सिंगल लेग मूवमेंट्स, ये सब भी हम ट्रेन करते हैं. जब उसको आप ग्रेजुअली ट्रेन करते हो, इसका मतलब ये नहीं है, देखो काफी बार क्या होता है कि आप जो ट्रेनिंग लोड ले रहे हो, अगर वो ट्रेनिंग लोड ज्यादा है, उसके साथ अगर आप इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस भी करोगे,
और वो भी अगर एक लोड से ज्यादा लोड है तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे और उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपके जो आपका नी है वो अडेप्ट नहीं होगा। तो हमें जरूरी है कि उसको अडेप्ट करना है। तो रिकवरी हमेशा जरूरी है कि आपको जो भी एक्सरसाइजेस, इंजरी रिडक्शन एक्सरसाइजेस होती है वो भी एक ट्रेनिंग लोड की तरह है, उसको भी आपको ट्रेनिंग लोड गिनना है। ठीक है? तो उसमें से जब आप रिकवर होते हो तभी आपको नी स्टेबल मिलता है, सिर्फ ओवरडूइंग से कुछ नहीं होता। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि वो भी चीज धीरे धीरे आपको gradually आपको strength and stability that should give you strength and stability gradually as well. Okay, so for knee stability or say ACL or other ligaments, basically injury prevention, what we do usually is क्या करते हैं हम लोग की quadriceps hamstring strength resorption activity, now depends किस टाइप की strength, जैसे hamstring resorption ज्यादा करता है तो इसलिए हम लोग eccentrics यूज करते हैं। soleus muscle, now soleus is considered as the agonist for ACL, मतलब ACL का friend है समझ लीजिए कि अगर आप सोलियस की स्ट्रेंथ अच्छी रखते हैं जो कि मैक्सिमम टाइम हमारे एथलेटिक्स में यूज होती है। In our athletics, basically in athletics a lot of injuries are just because of that we don't train it in the range we are using it. अब अगर आप काफ रेजेस कर रहे हो तो काफ एक्चुअली जब ज्यादा वर्क करता है जब आपका नी एक्सटेंडेड हो, और हमेशा हमारे एथलेटिक्स की सारी इवेंट्स में नी एथलेटिकली बैंड होता है, small kind of knee flex is always there. That's what we say athletically bend. Now if we bend the knee at that time, soleus is the muscle, it should be for longer movements. Like physic and non physic में difference है कि calf muscle जैसे नहीं zero हो जाता है, but अगर long distance runner है तो वहां पे soleus muscle जरूरी होगा। अगर कोई स्प्रिंटर या इम्पैक्ट कोई एक्टिविटी में है तो उनको दोनों ट्रेन करने पड़ेंगे, बट सोलियस आपको अगर आप ट्रेन करते हो तो आपको ACL के लिए भी वो प्रिवेंशन दे सकता है कि वो सोलियस क्या करता है, ACL का जो शेयर होता है आगे टीबिया जो आगे जा रहा है उसको सोलियस पीछे होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, दैट इज एन एक्टिव कंट्रोल। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास एक्टिव कंट्रोल है तो जो पैसिव लिगामेंट्स हैं उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। ओके, सो दैट्स समथिंग व्हिच वी डू इन प्रिवेंशन। काफी बार नी रोटेशनल एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं प्रिवेंशन के लिए। नी को कंट्रोल्ड फ्लेक्शन एक्सटेंशन में ले जाना, कंट्रोल्ड सिंगल लेग स्क्वाट, सिंगल लेग एक्टिविटीज, कंट्रोल्ड प्रोप्रोसेप्शन, बैलेंस। आप आंखें बंद करके अगर आप समझ सकते हो कि आपका नी जॉइंट कहाँ पे है, समझो कहाँ पे, कि मतलब है कि कितना बैंड है। जैसे हमें पता होता है प्रोप्रोसेप्शन का मतलब क्या है कि हमें पता है कि मैं आंख बंद करके भी बता सकता हूँ कि ये उंगली मेरी मुड़ रही है, ये कंप्लीटली मुड़ गई और ये कंप्लीटली स्ट्रेट हो गई, मैं उसको देख नहीं रहा हूँ, बट दैट इज अबाउट जॉइंट सेंस। तो वो जो जॉइंट सेंस है वो भी हमें नी में डेवलप करना होता है, क्योंकि हम भी एज एन एथलीट जब like when you are training or when you are say when performing, you don't see your knee, you don't see any of your part, basically that is completely on your joint sense. तो आपका joint sense भी हम लोग improve करते हैं injury prevention के लिए। Okay, so that can work into an ACL and knee stability program as well. I hope I'll just share it again. Yeah. Okay, then next thing we are talking about is concussion. नॉट सो कॉमन इन एथलेटिक्स, बट अगर काफी बार होता है तो काफी बार अननोटिस भी जा सकता है। अभी ये जो कंकशन है वो ऐसी चीज है जो काफी सीरियस चीज हो जाती है, एंड देन अ लॉट ऑफ टाइम इट इज अननोटिस्ड। ओके, कंकशन का मतलब क्या है? सिंपल ब्रेन इंजरी, इंटरनल ब्रेन इंजरी। ओके, कि जो बाहर नहीं दिखती है, बट अगर आपको जैसे काफी बार some of the accidents are there in javelin or some of the accidents are there in hammer throw or discus, कि जहाँ पे या तो आपका कोई आपको जर्क लगा है और जर्क में अगर आपको ब्रेन इंजरी हुई, आप गिर गए या नीचे गिर गए और आपको हेड इंजरी हुई, तो क्या होता है वैसे उसमें क्या होता है, what happens over here is like when your head is moving this way, jerky, that the brain जो स्कल के अंदर है, जो स्कल के अंदर आपका ब्रेन है वो स्कल से ही इंजर्ड हो जाता है। दैट इज इंटरनल ब्रेन इंजरी। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे पीछे गैप,
तो ब्रेन का जब मूवमेंट हुआ तो ब्रेन सॉफ्ट टिश्यू है, अ बिट इलास्टिक एज वेल, वैसे तो बहुत ही क्लोजली अटैच होता है, बट फिर भी इफ इट इज टू हाई, वेलोसिटी आपकी बहुत ज्यादा है, तो ये इस तरह से ब्रेन कोलाइड हो सकता है। तो वहां पे ये इंटरनल इंजरी, यहाँ पे जो रेड दिख पा रहे हैं, दिस इज द रेड मार्क ओवर हियर, दैट इज एन इंटरनल इंजरी ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड कंकशन। सेम फॉर बैक, ये जैसे अंदर हुआ उसके बाद आप वापस जब रिकॉइल होता है तो देन at the back also it can be injured. Okay, so both ways it can be injured. So this is what we call as concussion. Okay, internal brain injury. Now for internal brain injury, पहले ये चीज है कि उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। रिसेंटली विजन ट्रेनिंग जैसी चीज हम लोग काफी बार यूज करते हैं टू प्रिवेंट कंकशन, बिकॉज विजन इज समथिंग व्हिच कैन से give you more of visual control. If you improve vestibular control, then it might be that you can have a controlled kind of movement. Basically जो movement का jerk है वो control हो सकता है in your muscles. When suppose if it is neck movement which is killing, if your neck muscles are much more trained, then it won't be like too easy to get a jerk, uncontrolled jerk. Okay, so concussion is not much preventable of I would say, but yeah, like जहाँ पे collision होता है वहाँ पे तो definitely there is no prediction and no prevention, but by vision training or something the non-contact concussions can be prevented a bit. But अगर आपको हो जाता है तो then mental rest, give time to heal because it is a brain injury. Okay, that is important. And for injury prevention, much likely what we use is proper equipment, proper safety gear. For athletics, proper shoes because you don't slip. First, basically you don't fall. Okay, proper grip, proper good quality of track and all that we have to ensure that it is not something which is slippery or something which can make you fall and end up with the concussion. Okay, now slowly we are moving towards our main focusing injuries which are there. बहुत common है ये सारी चीजें और इसके प्रिवेंशन डिटेल्ड भी हैं जो हम लोग करते हैं, बट यहाँ पे शायद इतना डिटेल में आपको बता ना पाऊँ बिकॉज वी हैव लेसर टाइम एंड अ लॉट ऑफ इंजरीज, बट आई वुड मेक श्योर दैट आपको चीजें एटलीस्ट बेसिक से ज्यादा थोड़ी सी ऊपर तक की समझना है. ओके, नाउ अ स्ट्रेन ग्रोइन is like inner thigh. Okay, when your inner thigh muscles are strained, same, okay, overstretched maybe or overloaded, without proper preparation, or say you have prepared into concentric and suddenly that went into eccentric load, so resorb nahi kar pate, absorb nahi kar pate, at that time they get strained. Okay, so that is a muscle tear, minor tear to major, depends grain, jo groin injuries ka grade kya hai uske upar. Groin injuries, when we say groin, it is a combination of adductor and inguinal region. पूरा thigh होता है, inner thigh, सारे adductors, pectineus and all. So सबको हम groin बोलते हैं और सिर्फ जब हम adductor compartment बोलते हैं तो it is only giving you adductor. The injury occurs when people spread their legs too far apart or forget to warm up. Now this is something which is just an example. It is not like every time you would be just up लेग्स आपके टू फार अपार्ट जाएंगे तभी इंजरी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है. काफी बार आपके रेंज ऑफ मोशन, मिडिल रेंज ऑफ मोशन में भी अगर आपने ऐसा कोई पुश या पुल करने की कोशिश की जो अडेप्टेड नहीं है, जिसकी आपके पास से स्ट्रेंथ नहीं है, यू डोंट हैव स्ट्रेंथ फॉर गोइंग टू दी for achieving the same range or same force, at that time also you can end up with a groin strain or groin injury. It need not to be in the last range. Okay, so do not just suspect the groin injuries when it is into the last range. Same if you forgot to warm up, or most probably you couldn't train the groin into the last range with eccentric control. Maximum time our injuries, जो भी हमारी ज्यादा injuries होती हैं, वो controlling और रिजॉर्प्शन ना करने की वजह से होती है. हमारा फोकस होता है पुशिंग या पुलिंग बेसिकली, कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, बट कंट्रोलिंग द सेम, उसकी स्ट्रेंथ जब नहीं बढ़ती है या उसकी स्ट्रेंथ भी पैरेलली जब कंट्रोलिंग की चीजें नहीं बढ़ती है, देन वी एंड अप विद लाइक, जब भी आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम एक लेवल से ऊपर जाएगा तो देन यू विल एंड अप विद अ इंजरी ओवर देयर. ग्रोइन स्ट्रेन जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आई जस्ट गो टू द पॉइंट. ये जो ग्रोइन मसल्स है, ये दोनों तरफ के हिप इंग्वाइनल
जो हमारी लिगामेंट्स होते हैं वो है। तो वहाँ पे जो जो भी मसल्स अटैच्ड हैं वो सारे हम ग्रोइन के अंदर कवर करते हैं, अडाप्टर्स, पैक्टिनियस, इवन से अप टू सार्टोरियस। ओके, सो जैसे हिप फ्लेक्सर स्ट्रेन था, तो काफी बार हिप फ्लेक्सर स्ट्रेन और ग्रोइन स्ट्रेन आपको मिमिक कर सकते हैं, दोनों सेम काइंड ऑफ सिम्टम्स दे सकते हैं। वो आपकी फिजियोथेरापिस्ट आपको आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ टू ट्रीट इट एंड हाउ टू इवन प्रिवेंट इट। बेसिकली जो अडक्टर मसल्स हैं वो जब ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको आप देख सकते हो, तो ये जो मसल्स हैं दिस आर रेक्टस मसल्स, जो हमारे एब्डोमिनल सिक्स पैक मसल्स हैं वो, ठीक है, उनका इंसर्शन भी देखिए वहीं पे है। अब इसके पीछे जब आप देखोगे तो वहीं पे हैमस्ट्रिंग, जो अंदर वाला में हैमस्ट्रिंग होता है, उसका भी इंसर्शन काफी नजदीक होता है उसी के, जस्ट लाइक अराउंड अ बोन ऑफ 5 सेंटीमीटर वुड बी देयर। काफी बार जो पुलिंग एंड पुशिंग एक्टिविटीज है वहां पे इन मसल्स का इम्बैलेंस होने से भी आपको ग्रोइन स्ट्रेन हो सकता है, कि अगर आपके ग्लूट मसल्स ठीक से ट्रेन नहीं है, या ऐसी चीज की समझ लीजिए रेक्टस मसल्स ट्रेन नहीं है कंट्रोल जाने देने के लिए। अगर आपका हिप एक्सटेंशन में जाना चाहता है तो आपके रेक्टस मसल्स में भी एक्सेंट्रिक कंट्रोल होना चाहिए, कि जो आपको अलाउ करे विथ गुड स्ट्रेंथ। ओके, सेम जैसे मैंने बोला, लंबोपेल्विक स्टेबिलिटी, हमेशा कोई चेन ऊपर की या उसके आजू बाजू की चेन की, जिसको एक्चुअली अलाउ करना पड़ेगा। ये चीज हमें याद रखनी है कि कोई भी मसल्स अकेला काम नहीं करता। कोई एक मसल्स को फिक्स करके, जॉइंट को फिक्स करके उसको मोबाइल करने के लिए वो दूसरे मसल्स को अलाउ करता है, वहां पे फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करता है। वहां पे अगर फिक्सेटर्स की भी प्रॉब्लम हुई, जो छोटे छोटे मसल्स की जो जॉइंट को फिक्स कर रहे हैं, अगर उनकी भी प्रॉब्लम हुई, देन ऑल्सो जो आपका मेन मूवमेंट मसल है या फोर्स प्रोड्यूसिंग मसल है, दैट मसल कैन एक्चुअली go into strain or spasm or even tightness. Okay, that is like that is getting overloaded. Okay, या फिर उसके लिए उतनी ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी कि रेंज ऑफ मोशन और फिक्सेटर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है। ग्रोइन के लिए खास करके आपके जो लंबोपेल्विक, हमेशा मैंने जैसे मैंने बोला यहाँ पे एग्जांपल दिया, जो रेक्टस मसल्स है अगर वो ट्रेन नहीं है, या आपके सॉस मसल्स ट्रेन नहीं है जो हिप फ्लेक्शन करते हैं वो ट्रेन नहीं है, या आपके ग्लूट और उसमें बैलेंस नहीं है, तब भी आपको ग्रोइन इंजरी हो सकती है। इंजरी प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, सिंपली इनको भी हमें धीरे धीरे ट्रेन करना है, धीरे धीरे फिक्सेटर्स के साथ ट्रेन करना है। कोपेनहेगन एक्सरसाइज काफी लोगों को पता होगी, आप थेराबैंड से भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। जिम में आपके पास अडक्टर अबडक्टर के जिम मशीन्स होते हैं, उसमें टाइप ऑफ ट्रेनिंग चेंज करके भी आप कर सकते हो, कि आप काफी बार कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक दोनों जो आपकी एक्सरसाइजेस है उसका एक बैलेंस बना के रखो, उसको आप वो बैलेंस को आप आगे लेके जाओ आपके स्पोर्ट्स के हिसाब से, दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड इन योर स्पोर्ट, बेसिकली व्हिच इज योर इवेंट एंड व्हिच इज रिक्वायर्ड इन योर स्पोर्ट। स्प्रिंटर्स में ग्रोइन इंजरीज बहुत कॉमनली देखने मिलती है, क्योंकि उनको जो एक्सर्ट करना होता है फोर्स, वो अगर एक्सर्ट करने के लिए ग्रोइन इतनी अगर से रेडी नहीं है या प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये काफी बार ये हो सकता है। इंजरी रिडक्शन में आपको यही करना होता है इसमें, कि आपकी ग्रोइन को आपको ट्रेन करना है स्लोली स्लोली, वैसे ही ट्रेन करना है जैसे आप सारी मूवमेंट्स ट्रेन करते हो। आप जैसे स्क्वाट्स, लंजेस, जिस तरह से उसमें वेट्स धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोग्रेसिव जा रहे हो, वैसे ही आपको ये सारे मसल्स, स्मॉल स्मॉल मसल्स को भी उस तरह से सोचना है। जो सेड प्रिंसिपल है, स्पेसिफिक अडेप्टेशंस टू इम्पोज डिमांड्स, वो सारी बॉडी के लिए सेम है, वो मसल्स चेंज होने से या मूवमेंट चेंज होने से चेंज नहीं होता। तो वी नीड टू फॉलो दैट फॉर एवरी दिस, लाइक दैट सेड प्रिंसिपल और ओवरलोड प्रिंसिपल अप्लाइज टू ईच स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। ओके, ये है जो हमारा नाइटमेयर है एथलेटिक्स का, सबसे ज्यादा शिन स्प्लिंट्स। ओके, नाउ शिन स्प्लिंट्स कब होता है, अब इसके लिए आई वुड एक्सप्लेन समथिंग व्हिच इज लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो हमारा टीबिया है बोन, इफ आई कैन शेयर समथिंग, आई जस्ट अ मिनट। So it's more about knowing our structures, what we are working for. So I'll just share one thing with you, which is important to know.
Yes. Just share the screen again. Yeah. I hope this is visible. So ये है हमारा लोअर लेग, ये नी है यहाँ पे, ये हमारा लोअर लेग। तो ये जो है ना वो बोन टीबिया, ये देखिए आप देखें वो बोन के आजू बाजू या बोन के ऊपर, वो शिन के ऊपर कोई मसल्स नहीं। यहाँ पे जो व्हाइट आपको दिख रहा है साइड में, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम हमें पेन होता है, अब उसके ऊपर ये सारे मसल्स हैं वो सिर्फ क्रॉस ओवर कर रहे हैं। ठीक है, शिन के ऊपर कोई मसल्स अटैच नहीं होता है। ठीक है, ये एक चीज है जो हमें आइडेंटिफाई करना है जरूरी। ये देखिए ये जो टीबियल शिन है यहाँ पे, तो जो मीडियल अंदर की तरफ जो शिन होती है, वहां पे आप टच करके भी देख सकते हो, वहां पे कोई मसल्स नहीं दिखेगा आपको, सीधी हड्डी दिखेगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेम? ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आपके जितने भी मसल्स हैं आपकी बॉडी में, वो हमेशा फोर्स अब्सॉर्ब करने के लिए है वहां पे, कि वो आपका फोर्स ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द बोन एज वेल, फ्रॉम द फेशिया एज वेल, जो भी फेशिया या कनेक्टिव टिश्यू है वहां से वो फोर्स अब्सॉर्ब करते हैं और वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं। नाउ व्हेन दे कैन नॉट डू दैट, कि समझो वहां पे वो मसल्स जो है टीबियल शिन पे मसल्स नहीं है, और समझिए कि आपने आपका इम्पैक्ट इतना हो गया कि जो बाकी के मसल्स थे शिन के अलावा के, वो मसल्स भी उसके लिए रेडी नहीं थे। जैसे कि काफ मसल्स समझ लीजिए, ऊपर तक हिप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट मसल्स, उसका ट्रेनिंग इतना नहीं हुआ या इम्पैक्ट ट्रेनिंग इतना नहीं हुआ कि जितना उसको जरूरी है, जितना आपको वर्कआउट में लेना है, इम्पैक्ट लेना है, या जितना आपको पुश लेना है। तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस टीबियल शिन पे आना शुरू हो जाता है, वहां के फेशिया फिर धीरे धीरे स्ट्रेच होके वहां पे स्ट्रेन, जैसे सिंपल जैसे फेशियल माइक्रोटियर होंगे तो फेशिया आपको वापस ग्लू की तरह बॉडी उसको अडेयर करेगा, इसलिए आपको वहां पे माइनर माइनर लम्स या ऐसे दिखते हैं कि जहां पे आप प्रेस करने से पेन होता है, वो फेशिया है, वहां पे मसल्स नहीं है, इसलिए वो वहां पे फेशिया है कि जो स्ट्रेन है। तो काफी बार आप जब मसल्स या इम्पैक्ट ट्रेन नहीं करते, मैक्सिमम टाइम ये होता है, इसलिए काफी बार जो न्यू कमर्स होते हैं या जो न्यू ट्रेनीज होते हैं, जो धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं एथलेटिक्स की, जिन्होंने रनिंग ज्यादा नहीं की, तो रनिंग के इम्पैक्ट उन्होंने ज्यादा नहीं लिए, एट दैट टाइम दे कैन एंड अप विद मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको हम एमटीएसएस या शिन स्प्लिंट्स कहते हैं, शिन पेन कहते हैं। बहुत कॉमनली है, जो सबसे कॉमन मिथ है वो है कि वो होता ही है और वो चला जाएगा। वो चला जाएगा, वो राइट है, वो एक्चुअली दैट इज एब्सोल्युटली राइट दैट इट वुड गो, ओके, बट हाउ इट वुड गो, वो सेम लोड रखने से नहीं जाएगा। ओके, व्हाट वी नीड टू डू अगेन इज द लोड मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग द इम्पैक्ट। अगर आपको जो ट्रेनिंग, जो इम्पैक्ट लेने के बाद आपके एथलीट को या आपको वो हुआ है, वहां से आपको नीचे ही रहना पड़ेगा। अगर आप हर बार उसको वहां उस थ्रेशोल्ड को इरिटेट करेंगे तो देन इट इज नॉट गोइंग टू हील, क्योंकि आप हीलिंग करने नहीं देते। तो इसलिए हमें ग्रेजुअल जाना होता है। काफी बार क्या होता है कि आप जब बहुत फास्ट रनिंग बढ़ जाती है तब ये चीज होती है। तो इंजरी प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं इसमें, कि जो मीडियल मसल्स हैं और काफ मसल्स हैं या से ग्लूट मसल्स हैं, उसको हम ट्रेन करते हैं, साथ में पूरे लेग को एज ए यूनिट इम्पैक्ट कैसे करना, इम्पैक्ट कैसे अब्सॉर्ब करना, वो सिखाते हैं। काफी बार फुट टू कोर एक्सरसाइजेस हम लोग ऐड करते हैं इसके लिए, काफ मसल एक्सरसाइजेस ऐड करते हैं, जो इन्वर्टर्स एक्सरसाइज होते हैं, जो आपका एंकल इन्वर्टर जो है टीबियालिस एंटीरियर, टीबियालिस पोस्टीरियर, वो मसल्स को हम धीरे धीरे ट्रेन करते हैं। काफी बार इम्पैक्ट अब्सॉर्ब करने के लिए ट्रेन करते हैं। पुश एक चीज है, और पुश को बॉडी के साथ, क्योंकि आपका बॉडी जब भी आप प्लांटर फ्लेक्शन ऐसे करके बॉडी जब जा रहा है, आपका कांटेक्ट में आने के बाद आपका जब आर्च नीचे बॉडी बेसिकली ग्राउंड फुट फ्लैट हो रहा है आपका, या ग्राउंड को जब वो आर्च टच हो रहा है, तो आपका रिकॉइल कितना है, आपके मसल्स के पास रिकॉइलिंग पावर कितना है, अब्सॉर्बिंग पावर कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ग्राउंड है वो टीबिया, जो ऊपर का बोन है, एंकल, टीबिया, नी, वहां तक कितना फोर्स वो स्प्रेड करेगा, कितना फोर्स आपके मसल्स ले पाते हैं, और कितना कितना फोर्स नहीं लेने के बाद भी वो स्प्रेड होगा। तो इसलिए जितने हमारे मसल्स अच्छे होंगे इम्पैक्ट फोर्स लेने के लिए, उतना टिबिया या नी पेन होने के भी चांसेस बहुत कम हैं। ओके, इंजरी प्रिवेंशन के लिए इसलिए हम लोग यही करते हैं। तो काफी बार अगर आप किसी ने ऑब्जर्व किया हो, तो जो ज्यादा लंबी मोटर एबिलिटी ट्रेनिंग करते हैं, न्यू ट्रेनिंग्स जो मोटर स्किल्स ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि जंप या इम्पैक्ट, लंबे टाइम के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा टाइम लेके ज्यादा करते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं कि ज्यादा जंप करने वाले या ज्यादा,
बट जिसको टाइम मिलता है कि जिसको जंप्स उसको एक्सपोज किया गया है जंप्स और इम्पैक्ट ट्रेनिंग के लिए, और उसको अच्छे से टाइम दिया गया है अबाउट 2 to 3 months, उनको शिन पेन होने के चांसेस बहुत कम है, उनको नहीं होते ज्यादा शिन पेन। या फिर जिसको ऑलरेडी स्ट्रेंथ अच्छा है, जिसका इम्पैक्ट ऑलरेडी अच्छा है, जिसको लर्नड इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट करना उनको आता है, उनके पैर की ज्यादा आवाज नहीं आती ट्रैक के ऊपर, तो देन शिन पेन चाहे वो ट्रैक हो कुछ भी हो, जरूरी नहीं है, रोड हो तो भी नहीं होगा। ठीक है, आपका इम्पैक्ट रोड के लिए अगर आपको अच्छे से आ रहा है करना, तो हर एक सरफेस, काफी बार हम लोग सरफेस को ब्लेम करते हैं, बट आई वुड ब्लेम दी ट्रेनिंग बेसिकली, कि आप अगर रोड पे ऐसा नहीं है ना कि रोड पे पूरी दुनिया को पेन होता है, ऐसा नहीं है, काफी लोगों को नहीं होता क्योंकि वो उनके लिए ट्रेन है। तो ऐसा नहीं कि सरफेस एक ही चीज है या शूज एक चीज है कि जो उसके लिए है, डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, वो रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, पर अगर आप उसको ट्रेनिंग एक्सपोजर, ट्रेनिंग आपका उसी चीजों में आप उसको ट्रेनिंग करते हो धीरे धीरे, तो वो चीज आपको उसमें भी नहीं होती। ओके, जैसे इंजरी रिडक्शन की मैंने बात की, आप इन्वर्टर्स अच्छे से ट्रेन करो, फुट टू कोर एक्सरसाइजेस हैं, आई कुड नॉट ऐड सम ऑफ द वीडियोस ओवर हियर बिकॉज़ द presentation this length was going too high, but yeah, I can definitely share all those videos and all those injury prevention or injury reduction exercises, injury wise, whatever you want, on an email or something that I can share if you want. So these are the shin splints. जो मीडियल पेन है, जैसे मैंने बताया कि जो फोर्स आपका है उसके ऊपर मैक्सिमम टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर शिन स्प्लिंट्स ट्रीट नहीं करते हो राइट टाइम पे, तो वो स्ट्रेस रिएक्शन और स्ट्रेस फ्रैक्चर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद आपका जो टिश्यू इंजरी था वो बोन इंजरी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपको जितना टिश्यू में टाइम लगता है हीलिंग, उससे ज्यादा जहाँ पे बोन में टाइम लगता है, तो आपको पहले बोन को टाइम देना पड़ेगा, फिर टिश्यू हीलिंग को टाइम देना पड़ेगा, और फिर टिश्यू को वापस स्ट्रेंथन करके प्री इंजरी लेवल तक आने का टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरह से टाइम बढ़ जाता है। तो वी डेफिनेटली डोंट वांट दैट। तो आइडेंटिफाइंग द शिन स्प्लिंट्स बिफोर prior to stress reaction or stress fracture is important. Okay. Share it again. Okay. Then बैक पेन और साइटिका, जो आप कॉमनली जिस नाम से जानते हो ना, यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर करनी है, क्लियर होनी चाहिए हमारे दिमाग में कि हर एक बैक पेन साइटिका नहीं है, और साइटिका सिर्फ बैक से शुरू होता है वैसा भी नहीं है। ओके, हम पेन साइटिका किसे बोलते हैं कि जो पेन हमारा बैक से शुरू होता है या लेग से, लोअर अपर लेग से शुरू होता है, और या तो ट्रैवल करता है पूरे लेग की टेरिटरी में या कोई भी टेरिटरी में। ठीक है, नाउ साइटिका का मतलब है साइटिक नर्व जो होती है, जो एक नर्व यहाँ पे बैक से जो ओरिजिनेट होके पूरे नर्व जो आपके पूरे लेग को सप्लाई कर रही है, दैट सप्लाइज द होल नर्व ओवर हियर, होल लेग ओवर हियर, उसकी ब्रांचेस होती है धीरे धीरे। तो उसका कंप्रेशन जब वो कंप्रेस होती है, चाहे वो बैक के लेवल पे कंप्रेस हो, चाहे ग्लूट के लेवल पे कंप्रेस हो, हिप पे या अपर थाई, या काफी बार से पॉप्लिटियस फोसा जो नी के पीछे, या कहीं पे भी, तो आपको सेम सिम्टम्स आएंगे साइटिका। सिर्फ सिम्टम्स में डिफरेंस ये होगा कि जहां से कंप्रेशन से नीचे की तरफ आपको ज्यादा सिम्टम्स आएंगे, ज्यादा ऊपर की तरफ सिम्टम्स आने के चांसेस कम रहते हैं। ओके, बट साइटिका इज दिस, जस्ट साइटिक नर्व कंप्रेशन। ठीक है, नाउ जरूरी नहीं है कि हर एक आपका बैक पेन साइटिका हो, बट बैक पेन बहुत ही कॉमन है। सेम जैसे मैंने बताया, सबका काफी बार आइडेंटिफाई करते हैं कि बैक पेन जो होता है या तो स्पेसिफिक होता है या नॉन स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोई स्ट्रक्चर की वजह से आइडेंटिफाई किया गया है कि उसकी वजह से वो बैक पेन है, और नॉन स्पेसिफिक बैक पेन उसे बोलते हैं कि जहाँ पे हम बताते हैं या आप एक्सरेज कराओगे या एमआरआई कराओगे तो कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बैक पेन, दैट इज मस्कुलर डिस्फंक्शन। कि जो मसल इम्बैलेंस है, मैंने बताया कि आपका राइट हिप और लेफ्ट हिप अगर दोनों को मूवमेंट करना है साथ में, कि अपोजिट मूवमेंट करना है, तो आपका बैक और जो सैक्रम होगा, स्पाइन होगा, उसको भी मोबिलिटी के साथ कंट्रोल रखना पड़ेगा कि हिप अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो पाए या जंप हो पाए। तो वहां पे जब स्ट्रेसेस या शियर्स आते हैं,
शियर का मतलब है कि जहाँ पे अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, शियर या से रोटेशनल शियर और स्पिनिंग, तो वो जब होता है अनकंट्रोल्ड या अनअडैप्टेड, तो जो सेम बैक के छोटे मसल्स होते हैं कोई एक तरफ के या टाइट हो जाते हैं या स्पाज्म में चले जाते हैं। स्पाज्म का मतलब है प्रोटेक्टिव टाइटनेस, कि वो तुरंत वहां पे शॉर्ट हो जाएगा बचाने के लिए अपने आप को। स्पाज्म बॉडी अपने आप को बचाने के लिए करता है। बॉडी हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। बॉडी एक रोबस्ट स्ट्रक्चर है, बैक आपका एक बहुत ही रोबस्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। इतनी जल्दी आपकी बैक में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा या टूट जाएगा ऐसा नहीं है। यस, अगर वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है या एक्सटर्नल लोड इतना है या इतना बड़ा जर्क है तो डेफिनेटली यू शुड टेक इट सीरियसली। बट डरना और डराना दोनों ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए बैक को लेकर। बट हाँ, अवेयर होना चाहिए कि व्हेन इट इज अ टाइम टू सी अ स्पेशलिस्ट और व्हेन इट इज अ टाइम to do something to change your workout or your things because of the back pain. Now back pain भी जो है वो यूनिलैटरल मतलब एक साइड का बैक पेन होता है काफी बार दोनों साइड का बैक पेन या फिर सेंट्रल में बैक पेन होता है या फिर अपर बैक लोअर बैक उस तरह से होता है। तो उन सब के रीजंस अलग अलग होते हैं। कोई स्पेसिफिक एक बैक एक्सरसाइज सारे बैक पेन ठीक कर देगी ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। बट सबके लिए आप इंजरी रिडक्शन भी कर सकते हो, सबके लिए इंजरी आप उसको ट्रेन करके आप उसकी ट्रेनेबिलिटी आप अगर बढ़ाते हो, अडेप्टेबिलिटी बढ़ाते हो तो आप उससे परफॉर्म भी कर सकते हो अच्छे से। आपकी जो हमारी कोर एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं वो हमेशा उसको एड्रेस करती ही हैं। बट कुछ कुछ चीजें होती हैं जो स्मॉल हम लोग चेंज करते हैं कि जो इंटरनल स्मॉल मसल्स के फैसिलिटेशन से लेकर उनका रिट्रेनिंग जो हम करते हैं कि उनकी भी उतनी स्ट्रेंथ हो। जैसे मैंने बताया पहले ही, फिक्सेटर्स जो फिक्स करने वाले छोटे मसल्स हैं उनकी भी स्ट्रेंथ उतनी चैलेंज की जाए जितनी मूवमेंट और फोर्स डेवलप करने वाले मसल्स की कर रहे हैं। तब जाके आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, मोबिलिटी भी बढ़ती है, स्ट्रेंथ के साथ आप मूव कर सकते हो और मैक्सिमम टाइम हमें यही चाहिए इन एथलेटिक्स। बैक पेन जैसे कि जैवलिन थ्रोअर्स आप ले लीजिए या रोटेशनल जो डिस्कस थ्रोअर्स हैं या हैमर थ्रोअर्स हैं, यहाँ पे क्या होता है रोटेशनल शियर भी आता है। नाउ बाकी सारी जहाँ पे हमारी जो दूसरी ट्रैक इवेंट्स या जंप्स हैं, तो जंप्स में आपको जब समझ लीजिए कि आपका बैक आर्च हो रहा है तो वो सजेटल प्लेन मूवमेंट है, उसमें स्ट्रेस आ रहा है। पर रोटेशनल स्ट्रेन जहाँ पे हाई जंप और उसमें थोड़ा सा कम होता है पोलवर्ड वगैरह में, बट सबसे ज्यादा आपका रोटेशनल स्ट्रेन जो हम यूज करते हैं, रोटेशनल स्ट्रेंथ एंड पावर यूज करते हैं, वो है आइदर जैवलिन और द रोटेशनल स्पोर्ट्स इटसेल्फ, डिस्कस और हैमर। वहां पे भी बैक पेन होने के चांसेस ये इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि जो एक फुट हमारा होता है मैक्सिमम टाइम, जो एक रीजन हमारा होता है वो स्टेबलाइज होता है और उसको एक्सिस यूज करके हम लोग रोटेशन कर रहे हैं। अब वो फोर्स दोनों साइड के बैक मसल्स यूज कर रहे हैं, जो एक सपोर्टेड है विद फुट, एक हिप पे सपोर्टेड है और दूसरा जो कंप्लीटली इन द एयर है। अब इन दोनों का जो ट्रेनिंग स्टेबिलिटी है वो अलग अलग होता है, इन दोनों का जो मूवमेंट और मोबिलिटी है वो भी अलग अलग होता है। तो उनका फोर्स कैसे डेवलप करना, उस तरह की हम लोग एक्सरसाइजेस डेवलप करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। सिंपल एक्सरसाइजेस में क्या होता है, आप अपना ट्रेन करोगे सिंगल लेग एक्टिविटी या यूनिलैटरल जो एक्टिविटी हम बोलते हैं कि आप जैसे लंजेस हैं वैसे बायलैटरल है पर आपका हमेशा यूनिलैटरल अपोजिट लोड करता है। फिर काफी बार कैटल बेल से यूनिलैटरल ड्रिल्स करते हैं, कुछ सिंगल लेग स्क्वाट्स करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, सिंगल लेग हिप ब्रिज या ग्लूट करते हैं, ग्लूट ब्रिज करते हैं, सिंगल लेग सॉस ट्रेनिंग करते हैं। तो जितना आप सिंगल लेग अलग अलग ट्रेनिंग करते हो, जैसे कि हमारी हर्डल एक्सरसाइजेस है वो सिंगल लेग डिसोसिएशन पे ही वर्क करती है, वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। पर एथलीट काफी बार वो समझ के नहीं करते, काफी बार उसको इग्नोर भी कर देते हैं, मूवमेंट एफिशिएंसी या फोकस करके नहीं करते, तो काफी बार वहां पे भी आपको बैक पेन होने के चांसेस रहते हैं। कोई भी एक्सरसाइज खराब एक्सरसाइज नहीं है। इफ आई एम सेइंग दैट ये एक्सरसाइज करने की वजह से भी ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप गलत तरीके से करोगे तो कुछ भी होगा, चाहे वो अच्छे से एक्सरसाइज। ठीक है, बैक पेन जैसे मैंने बताया स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक रीजन क्या है वो हम ढूंढते हैं, चाहे वो हिप फ्लेक्सर का स्ट्रेन है या डिस्क बल्ज है। डिस्क बल्ज अगर प्रॉपरली डिस्क बल्ज की वजह से अगर होता है, जो हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, तो उसमें हमेशा आपको ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे जहां पे नर्व कंप्रेशन जैसे आपको सिम्टम्स मिलेंगे, आपका पैर सुन पड़ेगा या वैसे, तो आपको डेफिनेटली आपके स्पेशलिस्ट के पास आपको उनको ट्रीटमेंट करवाना है या आपको ओपिनियन है। उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, वो स्ट्रक्चरल इशू है, ठीक है, वो फंक्शनल इशू नहीं। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इशू आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है
काफी बार हम स्ट्रक्चर्स और एमआरआई ट्रीट करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि एमआरआई में चीजें फंक्शनली दिखा रही हैं। तो जो ये इम्बैलेंसेस होते हैं, या तो इम्बैलेंस है या नहीं है, वो देखना जरूरी है। और उसके हिसाब से अगर एक बार ट्रीटमेंट हो रहा है और रिपीटेडली अगर किसी एथलीट को इस तरह से बैक पेन हो रहा है, तो हम लोग उनकी जो पैटर्न होती है, वो पैटर्न को हम इंजरी प्रिवेंशन, इंजरी रिडक्शन में ऐड करके उसको रेगुलरली वार्म अप में ट्रेन करते हैं। ओके, सो दैट कैन बी वर्कड इनटू बैक पेन इंजरी रिडक्शन एंड इवन अ गुड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल। जैसे मैंने बताया, रोटेशनल स्पोर्ट्स में आपको रोटेशनल एबिलिटी भी ऐड करनी पड़ेगी इंजरी प्रिवेंशन, इंजरी रिडक्शन में। उसकी कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्शन है, कौन से टाइप का पावर आप यूज कर रहे हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, एक्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, अब्जॉर्प्शन कितनी रेंज तक यूज कर रहे हो, वो सब हम ट्रेन करते हैं। इंजरी रिडक्शन आप जैसे जैसे उसको ट्रेन करोगे, तो आपको लेस लाइकली इंजरी होने के चांसेस। I hope this was like up till this I was it was not so fast or something which is you couldn't understand. Now hamstring pulls again a nightmare. जैसे chin pain है, वैसे ही hamstring pulls is a big nightmare. बहुत सारे myths भी हैं hamstring pulls और hamstring के rehab को लेकर। सब कुछ अभी शायद address नहीं कर पाऊंगा, but then I would touch on those things which is important. हैमस्ट्रिंग मसल आपका ऐसा मसल है कि जो एथलेटिक्स में रिजॉर्प्टिव मसल है। हम जो कर्ल्स करके कर रहे हैं, उससे ज्यादा उसको कंट्रोल करना पड़ता है, लेंथनिंग। ओके, मैक्सिमम टाइम उसको अब्सॉर्ब करना पड़ता है, फोर्स रिजॉर्प्शन उसका मेन काम है। फोर्स एक्सर्ट करने से ज्यादा उसका रिजॉर्प्टिव काम, ठीक है। तो जब उसके लिए आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स रेडी नहीं होंगे, उसमें भी 3 पार्ट है। सबसे ऊपर वाला जो अटैचमेंट है प्रॉक्सिमल हैमस्ट्रिंग, देन जो मेन बेली वाला पार्ट है वो है मिडिल हैमस्ट्रिंग, एंड द लोअर वन जहाँ पे टेंडन होता है नी के वहां पे। तीनों की मूवमेंट्स अलग अलग है, तीनों के फोर्स टेंशन या फोर्स पॉइंट्स अलग अलग। अगर हमने तीनों को ट्रेन नहीं किया, काफी बार हम लोग जैसे नॉर्डिक्स यूज करते हैं या स्पेसिफिक मिडिल, जैसे नॉर्डिक आपको मिडिल या अपर मिडिल हैमस्ट्रिंग पे ज्यादा स्ट्रेंथ देगी, रिजॉर्प्टिव, ठीक है। एक्सेंट्रिक्स दूसरी करेंगे तो वहां पे अगर आप आरडीएल नहीं करते हो या डेडलिफ्ट्स नहीं करते हो, तो आपका प्रॉक्सिमल हैमस्ट्रिंग जो है वो रिजॉर्प्शन नहीं करेगा, या सेम फॉर डिस्टल। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हमें फोकस करके उसके तीनों पार्ट में डिवाइड करनी पड़ती है। तो हैमस्ट्रिंग ट्रिकी क्यों हो जाता है? क्योंकि काफी बार अगर कोई एक पार्ट भी मिसिंग है, कोई एक पार्ट का भी वर्कआउट या उसका ट्रेनिंग मिसिंग है आपके वर्कआउट में ओवरऑल, अगर आप ओवरलुक भी करते हो आपके वर्कआउट में, आपको लगता है कि नहीं हैमस्ट्रिंग के ये पार्ट में नहीं हो, तो वहां पे इंजरी होने के चांसेस है। तो काफी बार हम लोग रिट्रो जाके वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्कआउट में जैसे इंजरी होने के बाद, अब जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उससे पहले हमें ये इंजरी प्रिवेंशन में आइडेंटिफाई करना है कि वर्कआउट में ओवरऑल क्या नहीं है। तो उस तरह से आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन भी काफी कम हो जाएंगे धीरे धीरे। एक्सेंट्रिक ट्रेनिंग वो हम करते हैं मैक्सिमम हैमस्ट्रिंग पुल्स में, हैमस्ट्रिंग इंजरीज में। कैसे होती है हैमस्ट्रिंग इंजरीज, वो हमें पता ही है, काफी लोगों को खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। काफी लोगों ने मैक्सिमम टाइम एथलेटिक्स में काफी करियर है जो हैमस्ट्रिंग इंजरीज की वजह से शॉर्ट हो गए या से क्लोज हो गए। I would just go to the screen again. Now share. Okay. Yes, you can see over here it was a pull. This is where he is pointing. That is a middle part of the hamstring. You cannot even put your foot back once you are having a hamstring strain. So this is one example of hamstring strain. The most common example, again, a lot of people have seen that, is Usain Bolt himself. He got the injury. I will just get back.
Yeah. So this is an injury. I hope you are all able to see. So that was Usain Bolt, who got the same injury, hamstring injury, and he had to take a good amount of rest and recovery and then come back to sports again with the same training. Usko, when he is returning to sports, जब आप again you are returning to sports, then at that time you need to take care कि आपकी जो hamstring absorption है, resorption है, या जो उसकी strength है, that should be pre-injury level. कि जो आपका पहले इंजरी लेवल का जो आपकी स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी थी, लंबोस्पेलिक स्टेबिलिटी थी, वो उतनी ही हो, उतनी लेने के बाद ही आप रिटर्न टू स्पोर्ट्स करते हो. काफी बार इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि एथलीट बहुत जल्दी रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर लेते हैं और उनको लगता है कि वो अभी पेन चला गया है तो ठीक है, वो पेन जाने की वजह से और थोड़ा बहुत रनिंग कर पाते तो वो ठीक है, बट जब तक उसकी स्ट्रेंथ पूरी फुल रेंज में एक्सर्ट करने की नहीं है तब तक स्प्रिंटिंग बहुत मुश्किल होगा और देन रिलैप्स होगा. अगर हैमस्ट्रिंग में सबसे ज्यादा रिलैप्सेस होते हैं, बार बार रिपीटेड हैमस्ट्रिंग होना, इसका मतलब है आपने बहुत जल्दी रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर लिया. सिर्फ हीलिंग जरूरी नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू टेक द स्ट्रेंथ बैक. प्री इंजरी लेवल की जितनी स्ट्रेंथ थी वहां तक अगर स्ट्रेंथ आपकी टेस्टिंग में आती है, आपके रिटर्न टू स्पोर्ट्स के टेस्टिंग में आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताते हैं, देन इट इज अ सेफ थिंग टू रिटर्न टू स्पोर्ट्स. इंजरी रिडक्शन के लिए क्या करेंगे? सेम, उसको एक्सेंट्रिकली ट्रेन करेंगे तीनों पार्ट. हम काफी बार आरडीएल्स यूज करते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस की हेल्प लेते हैं इसके लिए. रोमानियन डेडलिफ्ट्स यूज करेंगे, सिंगल से यूनिलैटरल लिफ्ट्स करेंगे, डेडलिफ्ट्स करेंगे. नॉर्डिक्स यूज करते हैं काफी बार हम जब काफ को भी अच्छे से ट्रेन करते हैं तो जो हैमस्ट्रिंग का जो लोअर एंड है वो भी उसमें को कंट्रैक्टिवली ट्रेन होता है. आपका जो हैमस्ट्रिंग टेंडन है वो रिजॉर्प्टिव होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मैकेनो ट्रांसडक्शन, मतलब कि उसकी लेंथ, टेंडन की लेंथ इतनी जल्दी चेंज नहीं होती बट वो रिजॉर्प्शन कर सकता है. टेंडन स्टिफनेस के साथ मोबिलिटी दोनों का बैलेंस, ये आपके हैमस्ट्रिंग को बचा सकता है. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट हैमस्ट्रिंग के हैमस्ट्रिंग को प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसका रिकवरी कैसे करेंगे. The exercises and all we can still share, as I said. We would just go through the some of the major injuries of athletics as well right now. So for throwers, most common injuries are shoulders and elbows, and even say apart from knees and ankles as well. तो क्या होता है, lateral epicondylitis and medial epicondylitis are those injuries कि जहाँ पे slowly you are getting that inflammation, सूजन आ जाती है, जहाँ पे भी अटैचमेंट्स होते हैं वहाँ पे. ये मीडियल है अंदर की तरफ, जो जैवलिन थ्रोअर्स में ज्यादा होती हैं या डिस्कस थ्रोअर्स में होती हैं, और ये लैटरल है. डिस्कस थ्रोअर्स में काफी बार ये लैटरल भी होता है क्योंकि आप डिस्कस जब आप बार बार रिपीटेडली एक्सटेंशन में ले जा रहे हैं और आपके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या आप एक गैप के बाद वापस ट्रेनिंग में आए हो और वापस आपने शुरू किया है जहाँ पे आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की उसकी, तब भी हो सकता है. इसकी जो हमारी इंजरी रिडक्शन प्लानिंग होती है वो उसमें यही होता है कि आपको एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज करके उन्हीं मसल्स को रेडी करना है. ओके, साथ में जर्क और एक्सप्लोसिवली भी उसको रेडी करना है. तो काफी बार हम लोग बॉल टेंट्रम्स यूज करते हैं, हाँ, जो आपका स्विस बॉल होता है उसके ऊपर टेंट्रम्स यूज करते हैं इंजरी प्रिवेंशन के लिए और इंजरी रिडक्शन. ओके, शोल्डर मोस्ट कॉमन इंजरीज. यहाँ पे हमें जो फोकस करना है वो चीज ये है कि रोटेटर कफ इंजरीज आपको तब ज्यादा होगी जब आपके स्कैपुला या थोरैसिक मोबिलिटी का इशू भी ज्यादा होगा या कंट्रोल ज्यादा होगा, साथ में शोल्डर की स्ट्रेंथ 100% जब वो कम होगी या स्कैपुलर स्ट्रेंथ कम होगी.
शोल्डर और स्कैपुला वो साथ में रिदम काम करते हैं। जब स्कैपुला जो है वो पीछे का जो बोन होता है, जो हमारा यहाँ पे बोन होता है पीछे, आप सबको आप फील भी कर सकते हो जब आप हैंड मूवमेंट कर रहे हो, जब आप ऐसे करके मूवमेंट कर रहे हो तो आपका जो स्कैपुला है वो बाहर भी आएगा, अंदर भी जाएगा, रोटेट भी करेगा ऊपर नीचे। जब वो मसल्स हैं जैसे कि आपके ट्रेपेजियस, लोअर ट्रेपेजियस, अपर ट्रेपेजियस, वो मसल्स जब ज्यादा ट्रेंड नहीं है, अच्छे से ट्रेन नहीं है टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्कैपुला, एट दैट टाइम आपका जो शोल्डर होता है वहां पे ओवर यूज में जाता है, शोल्डर के कुछ मसल्स होते हैं उनको ज्यादा लोड लेना पड़ता है। सेम फॉर थोरैसिक मोबिलिटी, अगर आपके थोरैक्स जो है, जो अपर बैक है, वो मोबाइल नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, तो भी आपके शोल्डर से, क्योंकि हमारी सारी मूवमेंट कंबाइंड है, काफी बार जो आपके जैसे जेवलिन में अपोजिट हिप ड्राइव या अपोजिट नी ड्राइव, जो हिप ड्राइव और नी ड्राइव भी अगर लैकिंग है तो काफी बार हमारा जो जो आपका फोर्स ट्रांसफर होता है वो अगर ठीक से नहीं होता तो भी शोल्डर इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सब सारी चीजों का प्रिवेंशन वही है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम अगर हिप में है तो आपको हिप के बाद करना पड़ेगा। सेम स्कैपुला को ट्रेन करना पड़ेगा अगर स्कैपुलर इश्यूज हैं, और रोटेटर कफ और शोल्डर इश्यूज हैं तो शोल्डर को ट्रेन करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा है, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, कैसे ट्रेन कर रहे हो, दैट इज अबाउट योर इंजरी रिडक्शन। A lot of injury exercises are there for scapula, जैसे इंजरी रिडक्शन एक्सरसाइजेस के लिए आप जो IYT एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, काफी बार हम लोग यूज करते हैं, उसमें हमें ये देखना है कि कौन सी ज्यादा जरूरी है, पहले कौन सा वीक है, कौन सा जो एक रिदम है वो रिस्टोर्ड नहीं है। पहले आपको फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेके एक रिदम रिस्टोर करिए, रिदम अगर रिस्टोर हो गया तो फिर उसको ट्रेन कर सकते हो आप अपने रेगुलर वर्कआउट में, आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की हेल्प लेके, तो दैट वुड रिड्यूस योर शोल्डर इंजरीज एज वेल। ओके, नाउ सम लास्ट वंस, मैकेनिकल नी पेन सबसे ज्यादा होता है, उसका कोई रीजन नहीं है, सपोज एमआरआई नॉर्मल है, सब कुछ है, फिर भी मैकेनिकल नी के अंदर हो रहा है, अंदर की तरफ पेन हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर का नाइटमेयर है, बहुत ज्यादा होता है, काफी बार आपको ऐसा लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहा, महीने तक रेस्ट करते हैं फिर भी नहीं हो रहा। सेम अगर कोई स्ट्रक्चरल इश्यू नहीं है, मेनिस्कस, एसीएल, कोई लिगामेंट्स इश्यू नहीं है, सब नॉर्मल है, उसके बाद भी अगर हो रहा है तो उसका मतलब है कि या तो आपका हिप का जो हिप लंबोपेल्विक मतलब ऊपर बैक, हिप और नी का जो अलाइनमेंट या बायोमैकेनिकल बैलेंस होता है वहां कोई अफेक्शन है, चाहे वो मसल्स की वजह से हो, स्पेसिफिकली कोई एक मसल्स ओवरवर्क कर रहे होंगे, स्पेसिफिकली कोई एक मसल्स अंडरवर्क कर रहे होंगे, या एक पैसिव टाइटनेस होगी कहीं ना कहीं कोई एक मसल्स में और अपोजिट वीकनेस होगी, मस्कुलर इम्बैलेंस, या तो आपका जो इम्पैक्ट जैसे मैंने बताया शिन स्प्लिंट्स जैसे होता है, जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट में आपने ट्रेन नहीं किया और वो इम्पैक्ट शिन से भी ऊपर, आपको शिन पेन के बाद भी अगर आप नहीं रुकते हो, कंटिन्यू करते हो, तो शिन पेन के बाद भी आपको नी तक पेन। ओके, काफी बार ऐसा होगा कि अगर आपके नी ज्यादा वीक है तो शिन पेन होने से पहले आपको नी पेन, तो जो मैकेनिकल नी पेन होता है उसमें हम इंजरी रिडक्शन के लिए क्या करते हैं, जो आपके नी स्टेबिलिटी है, सिंगल लेग स्क्वाट्स वगैरह में नी जो स्टेबिलिटी होती है, कंट्रोल होती है, वो इम्प्रूव करते हैं, जो आपके abductors मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं। या काइंडली म्यूट सम लास्ट मिनट्स टू गो। ओके, सो जब भी अनअडैप्टेड रनिंग कॉन्टैक्ट या रनिंग इम्पैक्ट होगा ज्यादा, तब आपको मैकेनिकल नी पेन हो। तो लोकल ट्रीटमेंट्स के अलावा इट्स लाइक ठीक है, आइस एंड ऑल दैट दोस आर ट्रीटमेंट्स, बट फॉर प्रिवेंशन यू नीड टू ट्रेन द नी कंट्रोल अगेन, इम्पैक्ट अगेन, एंड उसके बाद ही आपको रनिंग या टेस्ट या जॉगिंग वगैरह स्टार्ट करना। अगर उसमें पेन हो रहा है तो आपको इग्नोर नहीं करना है, जब तक वो धीरे धीरे बंद नहीं होता तब तक आपको उन्हीं को ट्रेन करना है। तो ओवरऑल व्हाट इज द प्रिवेंशन रिडक्शन टिप्स, कि आपको जो प्लानिंग है वो लोड प्लानिंग करनी होगी, ठीक है, ताकि लोड आप मॉनिटरिंग के हिसाब से दीजिए, एथलीट के हिसाब से दीजिए, जितना लोड मॉनिटरिंग होगा उतना आप इंजरीज को आराम से फिजिकल प्रिपरेशन ऐड करके आप आराम से रिड्यूस कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। ट्रेनिंग ऑफ द फिक्सेटर्स एंड सिनर्जिस्ट, जो मेन मसल्स हैं, मेजर मसल्स हैं हमारे, उनको जो हम ट्रेन करते हैं, उसके अलावा जो स्मॉल फिक्सेटर्स या सिनर्जिस्ट हैं जो सेम जॉइंट्स को जब मूव करेगा उसको होल्ड करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी आपको फिक्स करना, उनको भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा। और ट्रेन कैसे करना है, जैसे मैंने बताया स्टेट प्रिंसिपल्स या ओवरलोड प्रिंसिपल्स के हिसाब से, आप अगर उनकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज के सेट्स और रेपिटेशंस फिक्स कर देंगे और वो ही आप ईयर अराउंड 2 years अराउंड इफ यू कीप डूइंग दैट, तो जरूरी नहीं है कि वो चीज हो। काफी बार आपको ये भी लगेगा कि हम वो कर रहे थे फिर भी इंजरी हुई, क्योंकि आप प्रोग्रेसिवली नहीं कर रहे थे, ठीक है। देन वार्म डाउन प्रॉपर्ली आफ्टर एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स, जस्ट सम अमाउंट ऑफ लूजनिंग,
काफी बार हम देखते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग भी जरूरी नहीं है, बट यू शुड हैव सम ऑन द लूजनिंग. दैट्स व्हाई आई यूजुअली यूज अ वर्ड एज लूजनिंग, बिकॉज वी नीड टू जस्ट, जैसे कि अगर ये स्ट्रेंथ है, ये लेंथ है आपका नॉर्मल मस्कुलेचर का, तो उसको आपको नॉर्मल, अगर उसने थोड़ा सा भी टाइट हुआ है वर्कआउट में, तो उसको आपको नॉर्मल ही लेके आना है, स्ट्रेच नहीं करना है. ओके, सो स्ट्रेचिंग इज समथिंग काफी बार मिसलीड करता है. तो व्हाट आई से इज दैट टाइट स्ट्रक्चर हैज टू बी लूजन. कम बैक टू ऑप्टिमल लेंथ, जो पहले था वो, उससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना. यू डोंट नीड मच फ्लेक्सिबिलिटी इनटू इट, यू नीड मोबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी इज अ पैसिव टर्म, स्ट्रेचिंग. मोबिलिटी इज एन एक्टिव टर्म, कि जो आपके रेंज आप यूज कर पाओ, वहां पे आपका कंट्रोल और स्ट्रेंथ भी है. ओके, so that we need to maintain. Stay hydrated. Again, water, salts, which are important for muscle metabolisms. अगर नहीं तो आपका muscle metabolism और muscle ATPs जो होंगे वो synthesize होने के बाद भी यूज नहीं होंगे. जो कैल्शियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, these are regularly needed for the muscle hemodynamics. तो उसके लिए भी you need to stay hydrated. Proper loosening, as I said, optimal length, not to stretch more. Use the right equipment or gear or proper fitting shoes. ठीक है, यहाँ पे आपके बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट आपको यूज कर सकता, आपको हेल्प कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप हर एक चीज, कोई एक जैसे कोई पेन या कोई चीज हुई तो उसी के ऊपर ब्लेम जाएगा. ब्लेम हमेशा हम तब डालते हैं जब हमें एक चीज मिलती है बट उसके दूसरे एस्पेक्ट्स पता नहीं. अगर शूज की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो शूज रिमूव करने से डेफिनेटली वो जल्दी ठीक होगी, बट आपको ट्रेन भी करना पड़ेगा. उसका मतलब है उस शूज के लिए आपके मसल्स ट्रेन नहीं है. काफी बार ऐसा होता है कि जो एक्चुअली रिक्वायर्ड शूज हैं वो भी आपके जो एथलीट्स होते हैं वो अडेप्ट नहीं कर पाते. ठीक है, तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी है. ट्रेन फॉर इम्प्रूविंग टेक्निकल कंट्रोल ऑफ, जैसे हम स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं तो उसमें कंट्रोल भी इंप्रूव करना है, ताकि उसमें जितना आप टेक्निकली साउंड होंगे, जितना आप स्किलफुली साउंड होंगे, तो उतनी आपकी ट्रेनिंग इंजरीज कम होंगी, competitive injuries भी कम होंगी. Recover every day. If you don't recover from the load, again it goes to the planning of load and load monitoring, that if you don't recover from it, you would end up having injuries for sure. So you need to recover, you need to say respect the curve of loading. जो आप ऊपर जाएगा उसको नीचे भी आने ही देना है, तब जाके आप वापस ऊपर जा सकते हो. तो सुपर कंपेंसेशन तभी होगा जब आप उसको अलाउ करोगे नीचे आने के लिए. ठीक है, if you do sustain a sports injury, rehabilitate properly. ये आपके relapses, ये आपके further future injury chances कम करेगा. अगर आपने ठीक से return to sports नहीं किया, कोई injuries ऐसी नहीं है कि जो आप train या treat नहीं कर सकते. It's just about the time and basically the distance you travel. Basically, okay, कि आपको कितना distance cover करना पड़ेगा, कितनी चीजें, कितना लंबा आपको time देना पड़ेगा, कितना dedication देना पड़ेगा. कोई भी इंजरीज में वही चीज होती है. परफॉर्मिंग आफ्टर इंजरी इज नॉट एन इशू, रिहैबिलिटेटिंग आफ्टर एन इंजरी एंड कमिंग टू द प्री इंजरी लेवल इज एन इशू. तो वो हमेशा करना है. पूरा रिहैबिलिटेशन जब तक ना हो तब तक रिटर्न टू स्पोर्ट्स प्लान ना हो तब तक आप जल्दी अर्ली रिटर्न टू स्पोर्ट्स ना करें. सो दीज आर द प्रिवेंशन टिप्स. नाउ बस ऑल यू नो, वार्म अप जरूरी है क्योंकि आपका ब्रेन कनेक्ट करेगा आपके मसल्स को. सब कुछ जो बाकी सारी चीजें हैं, ब्लड फ्लो, विस्कोसिटी, जॉइंट, फिजिकल, मेंटल, वो सब कुछ आपके ब्रेन और बॉडी के कनेक्शन पे डिपेंड करता है. तो फीलिंग जरूरी है. ओके, हीट नहीं. काफी बार हम देखते हैं कि गर्म नहीं हुआ बॉडी. नो, गर्मी इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, इट्स लाइक व्हेन यू आर फीलिंग कनेक्टेड, व्हेन यू फील कि नहीं आपके सारे बॉडी पार्ट्स आपके कंट्रोल में है, आई कैन मूव देम एफिशिएंटली, दैट इज योर प्रॉब्लम. ये भी आप जब आप करोगे तो देन इट वुड बी गुड फॉर यू फॉर रिड्यूसिंग इंजरीज. How do you cool down? Slow the intensity of the activity gradually. Cool down या warm down इतना कोई rocket science नहीं है. आपको सिर्फ slowly down आना है. ध्यान ये रखना है कि ठीक है आप ज्यादा भी stretch ना करो, but yes, you don't keep them tight and go. काफी बार मैक्सिमल स्ट्रेंथ या ऐसा चीज होती है तो हम इसलिए बोलते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और टेंशन आपने डेवलप किया है मेहनत करके, उसको सिर्फ माइल्डली डिस्कम्फर्ट से बाहर आप सिर्फ लूजन करके जाइए. बहुत ज्यादा लूजन करने की जरूरत नहीं है. वो जब अडाप्ट होगा उसके बाद आप जब आप ग्रेजुअली वापस उसको करोगे लूजन, तो वो ऑप्टिमली लूजन हो जाएगा. इसलिए वहां पे हम रिकवरी ज्यादा देते हैं, टाइम ज्यादा देते हैं वापस उसी सेशन से पहले. ठीक है, focus on the muscle that you are using during the workout. This will help reduce the incidence of stiffness and soreness. Mind control and using the mind and attention focus is important. If you think that your muscle is relaxing, you can relax it. काफी बार होता है कि मैं अपने एथलीट को बोलता हूँ कि फोकस ऑन रिलैक्सिंग.
जब उनको डर है कोई चीज का, कोई पेन का, तो हमेशा आपके मसल्स टाइट रहेंगे. You need to focus on relaxing. You need to do it from your brain, from your mind. That you can do as well. तो जब आप focus नहीं कर रहे हो, when you're talking to someone and you're loosening or pulling down, that's not a good pull down you would have an effect of. So you need to focus on the muscles, and you can do much faster than anything else. Then you can talk specifically. These are some common exercises and things which we already do. Okay, it's not something which is a new rocket science or something. But yes, something new or something specific, if you want, you can contact me. These are the stretches for upper body as well as lower body, back as well. This is an important release of the back. Sometimes we do MET into this for injury prevention of back as well, loosening and everything. This is for hip and lateral hip as well. Same for here. This is for upper body and neck. Okay, so before taking much time, I guess we are already out of our time. So I would keep it over here. You can ask your questions right now if you have any, and if not, then you can drop me an email or say drop a text on a LinkedIn account as well. That is again a professional account. Over there, I can answer your address your queries as well. I can even share, if you want, some of the specific exercises, if you want some specifically some specific cases for some specific cases as well. So if you have any questions, we can take the questions right now. I'll stop sharing if you guys have had enough look on the email ID as well. So I'll see whether chat box has any questions. Any questions? You can ask questions until I'm scrolling the chat box as well. There are so many messages. Thank you, Dr. Kothari, for this wonderful session. You have cleared a lot of things about sports injury, how sports injury occurs and how you can prevent sports injury. तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे पार्टिसिपेंट से, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो डॉक्टर कोठारी साहब पूछ सकते हैं. अदरवाइज हम इस सेशन को क्लोज करेंगे. हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, और जो हमारा सेशन होगा वो लेंगी डॉक्टर सैलजा कौर, जो होगा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इंजरी बैडमिंटन के और प्रिवेंशन बैडमिंटन के केस में. तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं. डॉक्टर कोठारी अभी अवेलेबल हैं. अदरवाइज वी विल क्लोज दिस सेशन. So I have a question. Yes. Yeah, please, Jitendra sir. Yes, I am Jitendra, senior cycling coach from LNIP Guwahati. डॉक्टर कोठारी, आप मुझे थोड़ा sciatica pain के ऊपर you can suggest some exercises on the to overcome from the sciatica pain. Sure, sir. I would be more than happy to do that. But the thing is, if it is sciatica, that has to be confirmed, and at which level it is actually. Like कहाँ पे compression है, cause क्या है, अगर वो हम जानते हैं तो उसके बाद suggesting exercises is an easy task. General exercises would be fine, आपको effect दे सकती है, but then it's not something. काफी बार आपने feel किया होगा कि आप general exercises कर चुके हैं, पर उसके बाद भी आप relief नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज targeted नहीं होगी. तो what we can do is for some of the specific queries, I can have you can just contact me, and then I can have an evaluation, and then from evaluation I can come up with something strong. Okay, thank you. I will come to Patiala and meet you. Sure, sir. Sure. Always welcome. I have a chat box question over here. What does it mean by synergist training? Yeah. So this is a good question. So basically, synergist का मतलब होता है कि जो main movers हैं उसके friends. Okay. Like synergist are something which is helping. जो joint को fixate करने में help कर रहे हैं, joint को वहीं पे maintain करने में help कर रहे हैं. Synergist training मतलब कि उन छोटे-छोटे muscles का control और stability और improve करना. तो हम क्या करते हैं synergist training में,
It's nothing more but specific amount of training or say on specific angles or specific range of motions जहाँ पे वो छोटे muscles challenge होते हैं. At those range of motion we train them. We identify first कि वो fixators या synergists कौन से हैं, उनकी कौन सी movement है कि जो joint को hold करता है, कैसे hold कर रहा है कि नहीं, किस तरह से उसको movement allow कर रहा है, rotational है, internal है, external है, वो synergist हम पहले identify करते हैं. Synergist is a muscle कि जो it's just like a parallel muscle कि जो main mover नहीं है, prime mover नहीं है, but वो fix करता है, उसको help करता है as a friend. तो वो जो छोटे मसल्स होते हैं जो जॉइंट को या फिक्सेटर्स करते हैं या जो हेल्प कर रहे हैं उसी मूवमेंट में, उतना पावर या फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे जितना मेन मसल्स कर रहे हैं, बट उससे कम कर रहे हैं, बट वो भी इंपॉर्टेंट है ताकि मेन मसल्स का भी जो रिडक्शन होता है बेसिकली जो फोर्स का वो इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह से उसको ट्रेन कर रहे हैं. पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सिनर्जिस्ट मसल है जो ज्यादा कंट्रोल में नहीं है या जिसके पास ज्यादा फोर्स नहीं है, और फिर हम उसको स्लोली सेम हमारा जो ओवरलोड प्रिंसिपल है उससे चैलेंज करते हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे से कर पाएंगे बिकॉज दीज आर समथिंग व्हिच इज वेरी स्मॉल एंड मिनिमल मूवमेंट्स. So that is something which is which we call it synergist training. I'll see if yeah, somebody have already answered that. Thank you for that. Thank you, sir. Yeah. Please explain IT band syndrome. Yeah, that is something which I would have explained with the knee pain. Basically जो mechanical मैंने medial knee pain अंदर की तरफ जो knee pain हमारा होता है वो जब मैंने explain किया था, वहाँ पे lateral भी knee pain काफी बार होता है जो हम IT band syndrome काफी बार बोलते हैं. यहाँ पे काफी सारे myths हैं IT band को लेकर भी, but the thing is important. IT band एक fibrous structure है, ठीक है. IT band syndrome या जो lateral knee pain होता है IT band की वजह से, वो होता इसलिए है क्योंकि IT band एक पैसिव स्ट्रक्चर है. आप समझ लीजिए एक सिंपल स्ट्रिंग है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, रिलैक्स नहीं होती. वो सिर्फ फोर्स जो उसके अटैच्ड मसल्स हैं, जो आगे वाले मसल्स हैं, वो TFL जो होता है टेंसर फेशियल लाटा, और उसके पीछे वाला जो मसल्स होता है ग्लूटियस मीडियस, ये दोनों के फोर्स के बैलेंस पे डिपेंड करता है कि TFL उसको ज्यादा फोर्स ट्रांसफर करेगा या ग्लूटियस मीडियस. जब उनके इम्बैलेंस होती है दोनों चीजें, वहां पे आपका IT बैंड टाइट फील होता है. और वहां पे वो IT बैंड नहीं होगा जो टाइट है, आपके दोनों मसल्स में से कोई एक का प्रॉब्लम हो सकता है या उससे भी ऊपर आपके बैक में प्रॉब्लम हो सकता है. IT बैंड में काफी बार हम देखते हैं कि काफी बार हम लोग फोकस करते हैं कि IT बैंड को रिलीज करें या फोम रोलिंग करें. IT बैंड रिलीज नहीं होता, सिंपल सी बात है. IT बैंड को अगर आपको रिलीज करना है तो दोनों तरफ 2 ट्रक लगाने पड़ेंगे और उनको खींचना पड़ेगा, तब IT बैंड रिलीज होगा, वो भी 5% लेंथ से कम. तो IT बैंड रिलीज नहीं होता है, हमें सिर्फ जो वो हमारा रिलीज है वो हमारा सिम्टोमेटिक रिलीज है, जो आजू बाजू के मसल्स, जो IT बैंड के आजू बाजू के मसल्स रिलीज होने से आपको मिलता है. अगर आपको पहले IT बैंड को ठीक करना है या IT बैंड को आपने डायग्नोज करना है पहले, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ इम्बैलेंस है, कौन से एक्टिव मसल्स में इम्बैलेंस है, चाहे वो टेंसर फेशियल लाटा जो ऊपर होता है TFL हम बोलते हैं वो है, या ग्लूटियस मीडियस या उसके साथ अडक्टर्स. तो जो आपका हिप है उसके अंदर से लेकर बाहर दोनों मसल्स में इम्बैलेंस होगा, तब भी आपका लैटरल या मीडियल स्ट्रक्चर होता है. तो मीडियल पेन भी इसी वजह से होता है, लैटरल पेन भी इसी वजह से होता है. ध्यान ये रखना है कि IT बैंड जब भी आप ऐसा आपको लैटरल पेन वगैरह होता है तो लुक 1 जॉइंट अबव 1 जॉइंट बिलो, असेस समथिंग कि पहले प्रॉब्लम कहाँ पे है. IT बैंड को रोज आप रिलीज भी करोगे तो इट वुड गिव यू a bit amount of relief, substantial relief, but then it won't be the complete solution of the problem. Okay, so that's around IT band. I can keep on going on IT band as well. There are so many factors of this, but then we'll take it case to case basis as well. If I have something, then I can share कि उस case में उस IT band issue में क्या हो रहा है. We'll see some more questions. Yeah, recorded trigger points. McKinsey treatment for sciatica, trigger point release. Now, I don't know if it is a question or something, but yeah, if it is a question, then that depends. Like, whether sciatica is from back, your McKinsey might work. If sciatica is not from back, your McKinsey might not work. Trigger point release. Now, if the muscles are having some issues, then my trigger point might work. Otherwise, it might not work.
I'll go. Yeah, this is a long. Can you please emphasize on how we can make a long-term approach in building strength in athletes? Can we start by building strength in single joint, small muscles first, and then moving towards big muscles, or shall we first begin with building strength in multi-joint movement exercises? Thanks very much. So, आपने खुद ने ही आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है. Basically, the question is like कि how do we start? Now that depends. You go parallel. Basically, आप कोई चीज पहले बाद में ऐसे नहीं करते, but yes, फोकस यही होता है कि अगर सिंगल जॉइंट मूवमेंट अच्छी होने लग जाती है तो then you combine it to the next joints, and then you go for a multi-joint movements as well. Okay. So yes, definitely loading multi-joint movements so early, so fast is definitely detrimental. कोई ना कोई प्रॉब्लम जिससे हो सकती है. But otherwise, you can always go like as you suggested. You can go like single joint. When you're confident, add more joints, go into multiple movements, see whether the form is correct, perfect or not. Calf muscles ki special exercise, shin bone pain ki remedy, yeah, that I can share. Please reach out to me on my email so that I can share over there. Yeah, so that's pretty much from the chat box. If you have any other questions, if we are not late, Gopalji would direct that. Okay. Thank you, Dr. Kothari, for taking participants' questions and answering participant questions. So, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं, देन हम सेशन को क्लोज कर सकते हैं. और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली डॉक्टर कोठारी से पूछ सकते हैं. उन्होंने ऑलरेडी अपनी ईमेल आईडी शेयर कर रखी है. So thank you, Dr. Kothari, for giving this wonderful session. I also thanks to all the participants who have attended this session. So we will meet tomorrow. The topic for tomorrow's session will be same, specific sports injury and their prevention. But it will be in for badminton sports, and it will be presented by Dr. Selja Kaul. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सेशन अटेंड कीजिए और मिलते हैं कल वाले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय. Thank you so much, all of you, for joining in, and I hope it was a helpful session. Thank you so much. Thank you, Dr. Kothari. Sir, 100